Assalamu alaikum everyone. This is Safia Amir. Welcome to our new session of online webinar series. And today we have our Dr. Atiya Rahman as an expert panelist. And this session is about Allied Health Sciences Program. How are you, ma'am? Thank you very much. Thank you for I'm joining fine. us today. Before starting our session, I would like to introduce Dr. Atiya Rahman. She is an expert in the field of allied health sciences with more than 25 experience in professional experience in the field, and she is one of the handful of PhDs in the field of allied health sciences, and she has contributed more than 50 research articles to the field. She has previously served leading roles at Pakistan Army, Hamza Foundation, and the University of Lahore, and she is currently serving as a principal of Department of Allied Health Sciences at Rashid Latif Associates. Before starting our today's session, I would like to highlight few points here. As we all know, Dr. Rashid Latif Khan is he is chairman and founder of Rashid Latif Associates. He is first Pakistani gynecologist to be awarded Sitara Imtiaz in 1992. His vision is education for all, and our Ma'am Sabahat, CEO of this university and Rashid Latif Associates. She pursued his vision and the establishment of this university and the establishment of Rashid Latif Medical College in 2010 and adding the nursing college and then allied health sciences field, and the establishment of this university with a variety of programs which includes science programs, medical programs, and the business field and the law field and social sciences programs. This university is totally based on Rashid Latif Khan vision, and then Madam pursued his vision. This university is 35 kilometers away from the Lahore, and this university is covering around 100 plus villages in the surroundings. And we have some salient features which we are offering here. That is, this campus is purpose built on 28 acres, and we have transport facility, we have cafeterias, we have mosques within the campus, we have air conditioned classrooms, and if we talk about the medical background, we have three major hospitals attached to this university and medical complex, which is Hamid Latif Hospital, Harmeed Latif Teaching Hospital, and RF Memorial Teaching Hospital. I would like to request Dr. Atiya Rahman to start this session and continue about telling us about the Allied Health Sciences programs. Thank you very much, Ms. Safia. And thanks for your brief introduction of Allied Health Sciences and RLK Associates. I'm Atiya Rahman, as she introduced. I'm by profession speech and language pathologist. In Rashid Latif Khan University, we are offering 3 degree programs in BS Honors. One is speech and language pathology, one is medical imaging technologies, and one is operation theater technologies. The eligibility criteria of all these programs is pre-medical FSC with 50% marks of science subjects with biology, physics, chemistry. And eligibility for these 3 programs are same. And other than, we are offering 2 more programs in RLK Associates in Rashid Latif Khan Medical Complex, Medical Lab Technologies, and Optometry. And there are 4 programs in RF Memorial Paramedical College. Speaking of this, ma'am, I would like to ask you कि हम लोग क्योंकि allied health sciences के programs 3 different हम लोग college university में offer कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से start कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से program offer कर रहे हैं राशिद लतीफ़ खान university में, और उनका eligibility criteria अगर मैं briefly थोड़ा सा बता दें. अच्छा, आरएल के यू एसोसिएट्स में ऐसे जैसे मिस सफिया ने बताया कि हम 3 प्रोग्राम्स को देख रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में. वन इज राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी, वन इज राशिद लतीफ खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एंड वन इज आरएफ मेमोरियल मेडिकल कॉम्प्लेक्स. और राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी में हम 3 डिग्रीज इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं. वन इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, वन इज मेडिकल इमेजिंग, एंड वन इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. एंड आरएलएमसी में एज सी इंट्रोड्यूस के हम आरएलएमसी में 2 डिग्री प्रोग्राम्स अभी इस वक्त ऑफर कर रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज एंड ऑप्टोमेट्री. और इसके ये इन सब डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 50% मार्क्स है मेडिकल में, प्री मेडिकल एफएससी 50% पे. और आरएफ मेमोरियल की अगर हम बात करते हैं तो आरएफ मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर हम इस वक्त 4 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. पैरामेडिक्स में हम डिस्पेंसर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, CSST और OTT.
और ठीक। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो मैट्रिक लेवल पे, और मैट्रिक लेवल पे 50% मार्क्स उनकी परसेंटेज आ रही होती है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग राशिद लतीफ़ खान मेडिकल कॉलेज में राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, इनके आगे करियर पाथवेज क्या है, स्टूडेंट क्या क्या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप हमें थोड़ा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इसको एलेबोरेट कर दें। Thank you very much. As I already introduced about the eligibility criteria and degree programs, जो राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में हम 3 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगी। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, नो डाउट इट्स नॉट न्यू फील्ड इन पाकिस्तान, इट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन 90s, but that was PGT. And it was introduced in BS form in 2008 in UHS, and Rashid Latif Khan Medical Complex was the first one institute that was enrolled and affiliated with that institute. और उसमें हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की 20 एफिलेटेड ऑलरेडी सीट्स थी। MLT भी हमारे पास उनके साथ एफिलिएशंस में था, MIT भी उनके एफिलिएशंस में था, optometry and diet and nutrition as well. Or speech and language pathology is not new in this institute, because the CEO of this institute is also speech and language pathologist, and she is the first one speech and language therapist graduated from UK. And the vision of Madam Sabahat is the quality education in this field is already introduced from 2013, एंड हमारे ग्रेजुएट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। स्पीच थेरेपिस्ट की सीट इस वक्त जो है वो 17 स्केल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में भी हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हैं। ये लोग अपना क्लिनिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त देखें ना तो पाकिस्तान में स्पीच डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। रूटीन में देखें तो ड्यू टू एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्क्रीन बहुत कम लोगों की जो है ना, बच्चों की डिलेड स्पीच आ रही है, स्टैमरिंग बहुत कॉमन है, स्टटरिंग बहुत कॉमन है। इसके अलावा ऑटिज्म का एक बहुत ट्रेंड है कि जी इस बच्चे को भी ऑटिज्म है, इसको भी ऑटिज्म है। तो अगर हम देखें कि नीड की बात करें या डिमांड की बात करें तो बहुत कम इंस्टीट्यूट ये डिग्री करवा रहे हैं, और राशिद लतीफ पायनियर इंस्टीट्यूट्स में से है, एज आर CEO इज आल्सो स्पीच थेरेपिस्ट। तो हमारे अब तक ग्रेजुएट्स, वी आर बेस्ट इन टाउन एंड बेस्ट इन प्रोविंस एंड बेस्ट इन पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, इसमें जब स्टूडेंट अप्लाई करेंगे राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्राम्स में, तो उनके लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, या स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसके बाद उनका हम लोग उनको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं? उनके लिए 50% क्राइटेरिया के साथ जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। एक एंट्री टेस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और फिर उनकी सिलेक्शंस होती हैं। और अगर हम RLMC की बात करें तो उसकी हमारी UHS के साथ 10 सीट्स MLT में है और 10 सीट ऑप्टोमेट्री में है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन उनकी करते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, अगर जो हम लोग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं अपने RF पैरामेडिक्स के, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हम लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। आपने पहले ही बता दिया कि वो हम लोग मैट्रिक के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसमें भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है? हम RF मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर 4 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। वन इज डिस्पेंसर्स, वन इज मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, वन इज OTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, नॉट टेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि BS ऑनर्स ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट वी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर यूनिवर्सिटी, टेक्नीशियंस हम वहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। CSST, सेंट्रल स्टेरिलाइजिंग सर्विसेज टेक्नीशियंस बेसिकली। और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैट्रिक बेस है, और 50% साइंस सब्जेक्ट के उनके मार्क्स होने चाहिए। अच्छा मैम, इसमें एक क्वेश्चन आता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो ये बी प्रोग्राम्स कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, वो आगे स्टूडेंट जो है वो 20 प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं हमारे? यस, व्हाई नॉट। अभी रिसेंटली, बिकॉज ये जो हमारा पैरामेडिकल कॉलेज है पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ एफिलिएटेड है ऑलरेडी, और इसके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या जो डिप्लोमा टेक्नीशियन बनते हैं वो अभी पंजाब बोर्ड्स यानी जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, तो उनकी एलिजिबिलिटी के साथ उनको इक्विवेलेंस टू FSC मिल जाता है। और उसमें वो अपने जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज एंड एंड इस्लाम। इस्लामियात, और अभी रिसेंटली ट्रांसलेशन ऑफ कुरान भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। ठीक है। तो उसका एग्जाम सेपरेट देंगे और उनको फिर एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो दे कैन परसू देयर करियर इन, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हैं तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में वो अपने आप को जो है ना वो एनरोल करवा सकते हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन होता है जो हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं अप्लाई करने के लिए, कि जो BS OTT करते हैं और जो OTT टेक्नीशियंस होते हैं वो सेम होता है?
नहीं, देर इज सर्टन डिफरेंसेस। आप देखें एलिजिबिलिटी दोनों की डिफरेंट आ डिफरेंट रही है है। वन बिल्कुल। इज एट एलिजिबिलिटी ऑफ मैट्रिक लेवल, तो उसमें भी मैट्रिक में भी उनके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इक्वलेंस जा रहे होते हैं, और उनके 50% क्राइटेरिया तो है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो टेक्नीशियंस हैं और जो बीएस ओटीटी करके जाएंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? वन इज बीएस टेक्नीशियन नहीं है, वो बीएस टेक्नोलॉजिस्ट है, यानी टेक्नोलॉजिस्ट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है। हम्म। एंड अनदर वन इज मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस। जो टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस है वो आफ्टर मैट्रिक है, हम्म। और मैट्रिक के बाद वो अपना जो मतलब वो 12 to 14 स्केल तक गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, और 2 इयर्स का हम इनको असिस्टेंट टेक्नीशियंस कह सकते हैं, कि वो थिएटर के अंदर एज अ असिस्टेंट काम करेंगे। और जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बीएस ऑनर्स के साथ करते हैं, मतलब ये कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है आफ्टर एफएससी। तो इनकी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर 16 and 17 स्केल की अपॉइंटमेंट्स हैं, और दे आर स्पेशलिस्ट इन एरिया ऑफ थिएटर्स, कि वो न्यूरो को असिस्ट कर रहे हैं, वो ईएनटी को असिस्ट कर रहे हैं, वो गायनी को असिस्ट कर रहे हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स को असिस्ट कर रहे हैं। दे आर सीनियर ऑपरेशन थिएटर हम्म। टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा मैम, हमारे पास जो राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज में हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि उनके प्रोग्राम्स की कब स्टार्ट हो रही है, उनकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है, और हम लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। इसको भी आप थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। उनके भी सेम क्राइटेरियाज है जो हम लोग जिस तरह से यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रहे हैं। यस, थैंक यू। अच्छा, उसमें ये है ना कि हमारा राशिद लतीफ अलाइडल साइंसेज जो है वो 13 से कंटिन्यू है। ठीक है। और जैसे कि हमारी हायर अथॉरिटीज का विजन था कि जी जी। क्वालिटी एजुकेशन विद दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ, हम्म। मतलब उसमें हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के साथ उनके जी बिल्कुल। एडमिशन्स, और उनकी जो कॉन्टिन्यूटी यही होती है कि सबका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम्म। हमारा प्री मेडिकल के साथ एफएससी 50% पे है, और पहले वाला जो हम आरएलएमसी के अंदर करवा रहे थे उसकी हम्म। सारी की सारी एफिलिएशन हमारी यूएचएस के साथ थी। हम्म। और अभी जो हम डिग्री 3 डिग्री प्रोग्राम्स जो हमने राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस कराए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, और वर्किंग क्लाइमेट या जॉब डिस्क्रिप्शंस भी सेम है। सेम है। क्योंकि पहले हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, हम एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तौर पे काम हमारी कर रहे थे। एफिलिएशन हमारी एफिलिएशंस यूएचएस के साथ थी। अब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अब हमारी यूनिवर्सिटी, हम चार्टर्ड हमारे पास हैं, और हम डिग्री स्टूडेंट को अपनी यूएचएस की मिलेगी। एचईसी से वेरीफाइड डिग्रीज देंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है। मैम, क्योंकि हम लोगों ने तीनों अपने उसको डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आप इसमें से थोड़े करियर पाथवे जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी स्टूडेंट ने बाहर जाना है, अब क्योंकि आजकल जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कोई टेस्ट होते हैं डिफरेंट जो अब्रॉड में अप्लाई करते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अगर हमारे मैट्रिक के बाद जो पैरामेडिक्स के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है बाहर के लिए, और यहाँ पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, सारे प्रोग्राम्स को आप ब्रीफली अगर एलेबोरेट करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, हम्म। और आरएलएमसी आरएलकेयू एसोसिएट्स के जितने डिग्री प्रोग्राम्स हैं, द स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग आउट ऑफ कंट्री, एंड बहुत से स्टूडेंट्स बाहर जॉब भी कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी गए हैं। अगर हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो इसके लिए सऊदी अरब का जो एग्जाम है, प्रोमेट्रिक एग्जाम, हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई करके वहां जॉब कर रहे हैं, और इसके अलावा दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो एग्जाम डीएचए है, स्टूडेंट्स हम्म। ऑलरेडी अपीयर्ड इन दैट, और वो इस वक्त वहां जॉब कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मतलब हमें फीडबैक और वहां से रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, क्योंकि हम ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग्स इनकी रोटेशंस हॉस्पिटल्स अपने तीनों हॉस्पिटल्स में करवा रहे होते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले हो जाएं या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस हो जाएं, इनकी क्लिनिकल रोटेशन साथ साथ चल रही होती हैं, जैसे कि इनको आपने हम ऑलरेडी। इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं क्योंकि हमारे 3 हॉस्पिटल्स अटैच है हमारे साथ। यस, दैट्स अ पार्ट ऑफ आरएल के एसोसिएट्स। जैसे आपने अभी बताया कि हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं। हमीद लतीफ हॉस्पिटल 300+ बेड्स के साथ है, हमीद लतीफ टीचिंग हॉस्पिटल 560 बेड्स के साथ है, एंड आरिफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल 600 बेड्स के साथ है। जबरदस्त। तो जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, दे आर वर्किंग इन आवर ऑपरेशन थिएटर्स। स्पेसिफिकली मतलब मॉर्निंग की ड्यूटीज पे भी बच्चे, इनिशियली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस पे होते हैं, फिर उसके बाद वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के साथ भी हम्म। असिस्ट कर रहे होते हैं सर्जन्स को, और क्लिनिकल एक्सटर्नशिप और इंटर्नशिप ड्यूरिंग देयर एकेडेमिया हम साथ साथ स्टूडेंट्स को करवा रहे होते हैं। ठीक है मैम, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग वो उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ऑप्टोमेट्री एंड बीएन साइंसेज एक ही डिग्री है? ऑप्टोमेट्री एंड वीएन साइंसेज, एक्चुअली दीज आर टर्म्स जो हम पाकिस्तान में डिफरेंट डिग्रीज के साथ करवा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसको, जैसे केई वाले हैं, वो वीएन साइंसेज के साथ हम्म। उनका इस नेम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कुछ डिग्रीज में डीवीएस के साथ भी है।
डॉक्टर ऑफ वीएन साइंसेस के साथ, लेकिन डॉक्टर ऑफ वीएन साइंसेस को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था। पंजाब एचईसी ने उसका जो डॉक्टर था वो कहा कि प्रीफिक्स नहीं यूज होगा, और ठीक है, इसको 4 इयर्स बीएस ऑनर्स कर दिया गया। एक ही डिग्री के दोनों नाम है, चाहे वो वीएन साइंसेस है चाहे वो ऑप्टोमेट्री है। ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है, जो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी डिग्री है, वो स्पीच की डिग्री से रिलेटेड है? हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या स्पीच थेरेपी, इट्स नॉट विद द डायरेक्टली एसोसिएटेड विद तकरीब स्पेशलिस्ट। मोस्टली हम एक हॉस्पिटल के बाहर भी मैंने एक स्पीच थेरेपिस्ट के नेम के साथ लिखा हुआ पढ़ा कि जी तकरीब स्पेशलिस्ट। इट्स नॉट द वो एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसी की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दिस इज नॉट तकरीब स्पेशलिस्ट। ये जो है ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ काम करते हैं। ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है। इसमें स्टूडेंट्स को, जैसे आपने ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम्स में बताया कि हमारे जितने बीएस ऑनर्स हैं वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स के साथ हैं, और 8 सेमेस्टर्स हैं। और हर सेमेस्टर जो है अपनी स्पेसिफिकेशन यूजी पॉलिसी 23 के साथ चलता है। हम इस डिग्री प्रोग्राम्स में पहले में हम एनाटमी, फिजियो, पैथो एंड डिसऑर्डर्स पढ़ा रहे होते हैं, और आगे जाके उन डिसऑर्डर्स की क्लिनिकल एक्सटर्नशिप एंड इंटर्नशिप्स करा रहे होते हैं उन्हीं डिसऑर्डर्स के अंदर। लाइक कि अगर पहले में हमने एनाटमी ऑफ ब्रेन पढ़ाई है, तो आगे में हम उनकी फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन पढ़ाएंगे, और उसके बाद उसकी पैथो पढ़ाएंगे। पैथो के बाद उसके डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएशंस ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स। तो स्पीच डिसऑर्डर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, मैं सादा लफ्जों में अगर बताऊंगी तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे अटक के बोलते हैं, जिसको हम तोतलापन, हकलाहट, ये कॉमन टर्म्स यही है ना। या ये कि माएँ अक्सर कहती हैं मेरा बच्चा लेट बोला, मेरी बेटी तो 2 साल की बोल पड़ी थी और ये तो अभी तक नहीं बोला, डिलेड में हम लेके आते हैं। फिर आजकल एक बहुत ट्रेंड है ऑटिज्म का, कि बहुत से बच्चे जैसे स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स के साथ फिक्सेशंस हैं, और उनकी स्पीच डिले होती है। तो स्पीच डिले जब होगी तो फिर भी आपको स्पीच थेरेपिस्ट कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, कि आपने अक्सर जगहों पे पढ़ा होगा स्पीच थेरेपिस्ट and speech and language pathologist. As DOVS, it's a same term कि speech therapist actually वो भी BS honors है, 4 years की डिग्री है, therapist के लिए भी and pathologist के लिए भी 4 years की डिग्री है। and almost curriculum same जा रहा होता है। anatomies, जैसे हम अक्सर oral cavity यानी मुंह से related disorders की बात करते हैं, तो किसी का cleft lip है, cleft palate है, कटा हुआ होंठ या तालू कटा हुआ आप देखते हैं, तो उसकी सर्जिकल प्रोसीजरिंग्स के बाद क्या होता है कि स्पीच थेरेपी कॉन्टिन्यूसली चलनी होती है। फिर अक्सर आप सुनते हैं कि जैसे लोग कहते हैं जी गूंगा बहरा बच्चा है, लेकिन उसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म्स कहते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड है। और हियरिंग इम्पेयर्ड क्योंकि उसकी डिवाइस जब तक ऐड नहीं होगी, जब हम देखें ना, जो पर्सन जो बच्चे आपके घरों में आप जो बोलते हो बच्चे वही बोलते हैं। बिल्कुल। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश। तो इसका मतलब है बच्चों की लिसनिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर लैंग्वेज। तो जो बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। और जिसकी एक डिवाइस ही नहीं है जिसके थ्रू उसने सुनना है, अगर उसका हियरिंग लॉस है या वो डेफ है, तो क्या होगा कि उसकी स्पीच भी डिले होगी। तो सबसे पहले होता है कि हम उसकी असेसमेंट करवाते हैं ईएनटी से, फिर हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, फिर एक डिवाइस ऐड होती है। और डिवाइसेस पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल हैं, इन द ईयर, इन द कैनाल, बीटी, यहाँ हेयरिंग एड आपने अक्सर स्टूडेंट्स के देखा होगा। और एक कॉक्लियर इम्प्लांट लेटेस्ट सर्जरी हमारे पास आ गई है कि इवन कॉक्लिया इनर पार्ट ऑफ ईयर को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जब इनकी डिवाइसेस ऐड कर दी जाती हैं तो बच्चों को फिर स्पीच प्रैक्टिस करवानी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की। अच्छा मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट हमारे कॉल करके भी पूछते हैं कि रेडियोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, तो मैं इसमें ये पूछना चाह रही हूँ, जो हम लोग प्रोग्राम एमआईटी ऑफर कर रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी, ये दो डिफरेंट हैं, ये दो सेम डिग्रीज हैं? ये कुछ इसमें ये वंस अगेन वही बात है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के नेमनक्लेचर का इशू आता है। तो रेडियोलॉजी इज बेसिकली मेडिकल इमेजिंग। अच्छा, फिर बहुत से लोग मेरे से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि व्हाट्स द सोनोग्राफी, व्हाट्स द क्या हम अगर एमआईटी की डिग्री कर लेंगे तो हम एक्सरे स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, तो क्या हम एमआरआई सिस्टम हम देखेंगे, क्या हम सीटी स्कैन्स देखेंगे? यस, यू कैन डू इट। जैसे जितने भी बीएस प्रोग्राम्स अलाइडल साइंसेस में हैं, इनकी एनाटमी, फिजियो, पैथो पहले 2 साल के अंदर हम उनके बेसिक्स करवाने के बाद और ऑब्जर्वेशंस पे भी साथ ही खड़ा कर देते हैं, क्योंकि क्लिनिकल इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम।
हमारे पास रेडियोलॉजी बहुत अच्छी सेटिंग्स में है, हमीद लतीफ हॉस्पिटल में भी, हमीद लतीफ टीचिंग हॉस्पिटल में भी, एंड आर्फ मेमोरियल हॉस्पिटल में भी। एंड That's interesting. ये वाले जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर डूइंग वेरी एब्सोल्युटली डिफरेंट देन अदर्स, क्योंकि हमारे पास पेशेंट काफी ज्यादा हैं और स्टूडेंट ऑलरेडी क्लिनिकल एक्सटर्नशिप्स के लिए होते हैं, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया। अब ये स्टूडेंट की भी प्रोफिशिएंसी है कि अगर किसी ने अगली एक्सटर्नशिप एंड इंटर्नशिप में ज्यादा सीटी स्कैन में काम किया हुआ है, तो फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये होता है कि वो अपनी रिसर्च, होता ये है कि जितने हमारे बीएस प्रोग्राम है, इट्स मैंडेटरी फॉर देम के 7 एंड 8 सेमेस्टर में जाके उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, और वो रिसर्च अपने स्पेसिफिक एरिया, जैसे हम कहते हैं रेशनल ऑफ योर रिसर्चेस, तो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट गेन करता है, जैसे किसी का सीटी स्कैन में इंटरेस्ट, और रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स या एमआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का सीटी स्कैन की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, किसी का एमआरआई की तरफ ज्यादा है, किसी का अल्ट्रासाउंड की तरफ ज्यादा है, किसी का सोनोग्राफीज पे ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी का डॉपलर्स पे है। आपको पता है कि रेडियोलॉजी कितनी पाकिस्तान में अब एडवांस हो चुकी है, तो अब वो उसकी रिसर्च जो है वो उस एरिया में स्पेशलाइज कर लेगा, और उसकी ज्यादातर क्लिनिकल एक्सटर्नशिप एंड इंटर्नशिप भी उसी एरिया में होती है। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो बीएस ओटीटी करेंगे वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं? देखिए, ओटीटी इज डायरेक्टली कंसर्न विद ऑपरेशन थिएटर्स, तो इंडिपेंडेंट कंसल्टेशंस कैसे करेंगे, क्योंकि थिएटर्स आर स्पेसिफिकली अटैच्ड विद द हॉस्पिटल सर्जिकल, तो जितने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस थे वो असिस्टेंट है, और जो टेक्नोलॉजिस्ट थे वो एज अ मतलब हेड ऑफ थिएटर चल रहे होते हैं, और ठीक है। उनकी सर्जन्स के साथ वो असिस्ट करेंगे। तो वो सेपरेट से नहीं कर सकते? वो सेपरेट से नहीं कर सकते, सेपरेट से अलग से थिएटर तो हम कहीं इंट्रोड्यूस नहीं ना करवा सकते, थिएटर इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने के लिए अब इन्हीं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस बच्चों का भी अपना क्राइटेरियाज होते हैं, और ये स्टूडेंट अपने अटैच सर्जन्स के साथ, जैसे मैं अपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो बहुत से एक्सपर्टीज आते हैं सीएसएसटी के साथ, क्योंकि सीएसएसटी पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेरिलाइजिंग सिस्टम ऑफ योर ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स एंड जितना हमारा वहाँ यूटेंसिल्स होते हैं, तो जो थिएटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहाँ ये सारे यूटेंसिल्स एंड सारी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए और उनको स्टेरिलाइज करके टेबल सेटिंग है उनका काम। और पूरे थिएटर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्जन ने आके अपनी वो पेशेंट की सर्जरी करके चले जाएंगे, एंड बाकी सेटिंग्स वगैरह जो ऑपरेशन थिएटर की है वो इन टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इट कांट बी अ इंडिपेंडेंट। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन वेबिनार जा रहा है उस पर आप अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। इफ़ यू कैन अप्लाई ऑन admissions.rlku.edu.pk अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे हैं मंडे टू संडे 9 to 5, एंड इसमें मैम थोड़ा सा ऐड कर देंगी। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं 042111626262, एंड यू कैन ईमेल अस at admissions@rlku.edu.pk। मैम इसको आप कंक्लूड करना चाह रही हैं प्लीज? थैंक यू वेरी मच। एडमिशन के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूंगी कि नो डाउट एमआईटी का इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास काफी ज्यादा है, ओटीटी के बारे में भी अवेयरनेस है, लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के लिए नो डाउट इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 90s, एंड जो बीएस ऑनर्स है हमारा पहला बैच जो पास हुआ यूएचएस एंड किंग एडवर्ड के साथ वो 12 में हुआ, बट ये कि अभी भी ये इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं है कि व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और ये करते क्या हैं, तो प्लीज अप्लाई इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। हम अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ आरएल के एसोसिएट्स के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर टॉपर ऑफ यूएचएस फर्स्ट 3 positions. We are best in town, best in Punjab. हमारे जितने स्पीच थेरेपिस्ट हैं हमारी यूएचएस की लास्ट 3 पोजीशन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की थी, एंड सेकेंड ईयर की भी फर्स्ट 2 पोजीशन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की थी, एंड प्लीज अप्लाई इन दीज एरियाज एंड स्पेशली इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रमोट दिस बिकॉज इट्स मच रिक्वायर्ड इन सोसाइटी, एंड कंटिन्यू विद अस. Welcome to you here in Rashid Latif Khan University in Speech and Language Pathology and Allied Health Sciences. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.